Welcome friends in DD Learning. So we are going through the different types of function. Today we are going to discuss exponential function. So we will see in exponential functions the graph of the exponential functions, how it looks. So first of all I will write down general form of an exponential function. So suppose if I say y as equal to a into b to the power of x. So y equal to a into b to the power of x. It's a general one of the form of the exponential function, and we'll discuss in exponential function here the value of b is always going to be positive. Value of b is always going to be the positive. But to know the graph, how the graph of these exponential functions will look like, for that we are going to split the value of b into two parts. Suppose if the value of b can either be between 0 and 1, and the other part it is when the value of b is greater than 1, and let that the a is positive. A is positive. So we are going to go through the two different cases. In one case the value of a is positive and the b is between 0 and 1, and the other case will be when the value of a is positive and the value of b is greater than 1. So let's first of all I will draw the graph of the part when your a is positive. When your a is positive, I will draw the graph over here, so it will be easy for you to get into it. So first of all I am going to draw the graph for a greater than 0 and the value of b is greater than 0 and less than 1. The graph will looks like this. X-axis, y-axis, and the graph of the function. This is the graph of the function y equal to a into b to the power of x. So well, over here if you say the y-intercept will be your a, because if I substitute x as 0, so what we will get, y as equal to a into 1, that is a. So that is nothing but your y-intercept. To get the y-intercept for any particular functions, we will substitute the x with 0, the value of y which we will get, that is the y-intercept. So in this case our exponential function is y is equal to a into b to the power of x, where a is positive and b is a number between 0 and 1. And over here if you say that the graph which I have drawn is decreasing, because as we are moving from left to right along the horizontal axis, as we are moving from left to right, the value of y is gradually decreasing. So it is monotonically decreasing function. It's a monotonically decreasing function. Monotonically decreasing function. Why I am telling that it is a monotonically decreasing function? Because over here, as the value of x is increasing, the value of y is continuously decreasing. There can be the cases where as the value of x is increasing, the function's value is decreasing, but after a certain interval, in some interval it is constant. So in that sort of a cases, it is not monotonically decreasing, it is a monotonically strictly decreasing. We will discuss on that decreasing and increasing. भाई क्या डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं, और उनसे चेक कैसे करते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन अगर हम लोग को दे दिया जाए, एंड इफ यू वांट टू नो कि भाई ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हम लोग इसके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर क्लास करेंगे.
तो वहाँ पे मैं आप लोगों को आई विल टेल यू पीपल दैट्स हाउ टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या हाउ टू फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सो नाउ ओवर हियर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन जो है ये आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. इज बीइंग इन द फॉर्म a into b to the power of x, जहाँ पे आपकी a की वैल्यू पॉजिटिव है और b की वैल्यू जो है वो आपके 0 एंड 1 के बीच पे है. एंड हम लोगों ने देखा कि ग्राफ जो है ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रहे हैं और ग्रेजुअली आते हैं तो वो एक्स एक्सिस की बहुत क्लोज आ रहा है, लेकिन ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को इट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस. ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी कॉमन सेंस वाइज अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो एक्स में मैं कोई भी नंबर डालूं, y value can never be 0. Whatever the value of x we will substitute over here, y value can never be 0. तो ये जो ग्राफ जो हम लोगों ने बनाया है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये आपकी एक्स एक्सिस की बहुत ही क्लोज आएगी लेकिन कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन ये जो स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस जो है ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एसिम्पटोट है. तो हम लोग एसिम्पटोट के ऊपर अलग से क्लास भी करेंगे, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि ये एसिम्पटोट होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट एसिम्पटोट इज अ स्ट्रेट लाइन. एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन होता है. ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, कर्व जो है ना ये स्ट्रेट लाइन की बहुत ही क्लोज आएगा लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करेगा. जैसे इस केस में अगर आप लोग फॉलो करते हो तो ये देखो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये कर्व ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इट्स कमिंग वेरी वेरी क्लोज टू द एक्स एक्सिस बट इट विल नेवर टच. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसका एसिम्पटोट, ये जो एसिम्पटोट है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है. हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट. So over here the horizontal asymptotes is your x axis where the equation is y equal to 0, where the equation is y equal to 0. So after that again हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोगों ने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो ग्राफ जो बनाया है ये आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है. ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तभी होगा जब b की वैल्यू आपकी 0 एंड 1 के बीच पे होगा. और एक चीज हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है. ये कैसे पता चलेगा? अगर आपका ये a जो है द कोफिशिएंट ऑफ b टू द पावर ऑफ x अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये ऑलवेज आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा. तो अगर आपका a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऑलवेज आपका एक्स एक्सिस के ऊपर होगा. एंड ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तब होगा जब b की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच पे हो रहा है. हम लोगों ने यहाँ पे और एक पार्ट है, इफ यू सी माय फ्रेंड्स दैट्स ओवर हियर कि a की वैल्यू जब पॉजिटिव है, दूसरा और एक पार्ट है जब b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. तो हम लोग अब उनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि a की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0, a वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड b वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. तो इन दैट पर्टिकुलर केस द ग्राफ विल लुक्स लाइक व्हाट आई विल शो यू ओवर हियर. यहाँ पे आप लोग देखो एक बार. यस, यहाँ पे आप अगर आप लोग देखते हो ये रहा मेरा x एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द o. So well over here my friends if you see that the exponential curve is now increasing. तो मतलब b की वैल्यू जब आपकी ग्रेटर देन 1 होगा तो आपके ये जो कर्व जो होगा एक्सपोनेंशियल का ये आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा. ये ऊपर की तरफ जाएगा टुवर्ड्स द प्लस इंफिनिटी along the y axis. तो what we came to learn from here कि a की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो आप देखो दोनों केस में आपके ग्राफ जो है ये आपका x एक्सिस के ऊपर है एंड b की वैल्यू जब आपका 0 एंड 1 के बीच पे है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा है. इज कमिंग क्लोज टू द x एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. और a की वैल्यू जब पॉजिटिव है तो एंड b की वैल्यू जब 1 ग्रेटर देन 1 है तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. इन बोथ द केसेस योर एसिम्पटोट जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है वो आपका एक्स एक्सिस है. एसिम्पटोट वर्टिकल एसिम्पटोट भी होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिम्पटोट. एसिम्पटोट इंक्लाइंड भी होते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने बस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होते हैं, उनमें वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं होता है. वर्टिकल एसिम्पटोट का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, इंक्लाइन एसिम्पटोटों का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, वी विल डिस्कस इन दैट एसिम्पटोट क्लास. आज हम लोगों का पूरा डिस्कशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या देखा कि जब a की वैल्यू जब पॉजिटिव है
एंड b का दो का पार्ट था, b की वैल्यू इधर 0 एंड 1 के बीच में, या b का वैल्यू ग्रेटर देन 1। हम लोगों ने ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर रहे हैं, ये b जो है ये बेस है, एंड b की वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हम लोग b का वैल्यू नेगेटिव लेके नहीं चलेंगे, b इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर ग्रेटर देन 0। अब नाउ वी विल गो फॉर द पार्ट जब आपकी a की वैल्यू नेगेटिव होगी। So now I will clear the board. So if you will want to draw the curves, please draw it. So I will just clear the board now. मैं board को clear करता हूँ। So friends, we are getting a lot of views. People are going through our videos. We are very happy. So अगर आप लोगों को कुछ भी कमेंट करना है तो यू कैन कमेंट इन द बिलो, एंड डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हम लोग का आईडी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। सो कमेंट कर सकते हैं बिलो में, आईडी बॉक्स डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आईडी है। तो भाई लेट्स कम बैक। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कि वी आर नाउ गोइंग फॉर द केस व्हेन योर a की वैल्यू है नेगेटिव, a की वैल्यू है नेगेटिव, बट b की वैल्यू को हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट किया। व्हाट वी आर डूइंग, the earlier part we have done that when a is positive and b is between 0 and 1 and when b is greater than 1, but now we are going for the part कि a का वैल्यू जब नेगेटिव होगा, a का वैल्यू जब नेगेटिव होगा and b की वैल्यू, the value of b is again going to be split in two part, either it is being between 0 and 1 or greater than 1। तो पहले मैं ग्राफ आपका ड्रॉ करूंगा when a is less than 0 and b is 0 and 1। बहुत ध्यान से फॉलो करोगे आप, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डिफरेंट फंक्शन की जो ग्राफ जो है ना, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या है कि ग्राफिकली अगर आप उनको समझते हो तो यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन। आज मैं एट द एंड ऑफ द क्लास के मैं आपको एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि कैसे ग्राफिकल वे में इक्वेशन सॉल्विंग कितना इजी हो जाता है, एंड उसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बस उसका ग्राफ का एक नॉलेज होने से आराम से समझ में आता है कि उनमें कितने सारे सॉल्यूशन होते हैं। सो ओवर हियर माय फ्रेंड्स कम बैक। सो a इज नेगेटिव, b इज बिटवीन 0 एंड 1। अगर आप लोगों ने पहले देखा है कि a की वैल्यू जब पॉजिटिव था तब ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल का अबव एक्स एक्सिस था, अभी आपका a का वैल्यू नेगेटिव है एंड ग्राफ विल बी बिलो द एक्स एक्सिस। तो ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, ये है हम लोग का वाई एक्सिस, एंड ओवर हियर मैं फिर बोल रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ b द इज बिटवीन 0 एंड 1। तो इनकी ग्राफ जो होगा वो आपका ऐसे होंगे। तो आप यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो रहा है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है, ये आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है। एंड ओवर हियर the asymptote is your horizontal asymptote is here, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ HA means the horizontal asymptote, HA means horizontal asymptote, जो यहाँ पे x axis ही है, जिसका इक्वेशन हम लोगों को पता है कि वो y equal to 0 होते हैं, एंड इनकी जो y इंटरसेप्ट है वो आपका a है, जहाँ पे a की वैल्यू नेगेटिव। सो आई विल राइट हियर y intercept is equal to minus a, sorry not minus a, it is a itself is a negative number। so ये हो गया ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आपकी a की वैल्यू नेगेटिव है एंड b इज बिटवीन 0 एंड 1। नाउ आई विल ड्रॉ द कर्व जहाँ पे a की वैल्यू इज नेगेटिव एंड b इज ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू नेगेटिव एंड b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो इन दैट केस द ग्राफ विल लुक्स लाइक दिस। सो वेल ओवर हियर ये जो पहला जो ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डीडी लर्निंग भी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ योर लव्स वी आर गेटिंग। सो कोई भी कमेंट है तो आप प्लीज़ बिलो में कमेंट में डालिए, एंड आईडी हम लोग का डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आईडी भी है, आप उसमें फिर हम लोग कमेंट कीजिए, या यू कैन फॉलो अस इन द टेलीग्राम सो दैट हम लोग ऐसे ही मोनोटोनिकली इंक्रीज करते रहें, क्योंकि हम लोग इंक्रीज जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग आप लोगों को भी ऊपर लेके जाएंगे इन द फील्ड ऑफ द मैथ्स नॉलेज। ओके, सो लेट्स कम बैक ओवर हियर माय फ्रेंड्स। तो वेल ओवर हियर हम लोगों के पास क्या है, अभी a की वैल्यू नेगेटिव एंड b की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और तो भाई ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है।
तो इट इज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट विल बी योर एक्स एक्सिस ओनली, इज योर एक्स एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0 एंड y इंटरसेप्ट आपकी a है, तो y इंटरसेप्ट इज a। तो इस तरह से हम लोगों के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 4 तो इक्वेशन आए। एक बार जब a की वैल्यू पॉजिटिव, उसमें जब b की वैल्यू जब बिटवीन 0 एंड 1 एंड ग्रेटर देन 1, और दो पार्ट आया व्हेन a की वैल्यू नेगेटिव एंड b की वैल्यू अगेन बिटवीन 0 एंड 1 या ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से 4 डिफरेंट वे में एक्सपोनेंशियल कर्व, बेसिक एलिमेंट्री जो कर्व, एलिमेंट्री कर्व है एक्सपोनेंशियल का, ये चारों होते हैं। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का जब हम लोग क्लास करेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट वे में ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद ग्राफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। सो और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ के ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे। अच्छा, एज आई टोल्ड यू दैट बिफोर द एंड ऑफ द क्लास मैं आप लोगों को एक ऐसा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, और जहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो अगर निकालने के लिए बोला जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टू द स्टूडेंट सोचते हैं कि इस तरह का इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे। प्लीज फॉलो द बोर्ड। सो द इक्वेशन एक बार देखो आप लोग, इक्वेशन क्या है। द इक्वेशन दे हैड गिवन दैट दे आर आस्किंग दैट फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन e to the power of x is equal to sin x। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये ऐसा एक इक्वेशन है जो देख के ही समझ में नहीं आता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इज हाउ मेनी रियल सॉल्यूशन इज देयर, हाउ मेनी सॉल्यूशन इज देयर for the above equation। तो आप लोग इनको करेंगे कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दो डिफरेंट फंक्शन ले लेते हैं। एक तो हम लोग ले लेते हैं एज स्मॉल एफ एक्स एज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एक्स, एंड और एक फंक्शन मैं ले रहा हूँ दैट इज योर जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इस तरह से हम लोगों के पास दो फंक्शन आ गए, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ऑफ x और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज योर sin x। अब ये यहाँ पे जो इक्वेशन जो सॉल्व करना है उसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई e टू द पावर ऑफ x इक्वल टू sin x की पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको दूसरा और एक वे में व्हाट वी कैन से दैट वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन ऑफ x एंड g ऑफ x कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग। आई रिपीट माय स्टेटमेंट ओवर हियर, दे वांट द इक्वेशंस, इस इक्वेशन का कितने सारे सॉल्यूशंस हैं। तो दिस इक्वेशन का कितने सारे सॉल्यूशंस है को दूसरा वे में हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि हम लोगों ने पहले दो डिफरेंट फंक्शन ले लिया। वी गेट्स वन ऑफ द फंक्शन एज e टू द पावर ऑफ x, दूसरी फंक्शन जो है वो हम लोग के पास sin x है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि e टू द पावर ऑफ x इक्वल टू sin x, इस इक्वेशन का कितने सारे सॉल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि कितने जगह पे ये दो डिफरेंट फंक्शन इंटरसेक्ट करेंगे, जितनी जगह पे ये दो डिफरेंट फंक्शन के कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उतने सारे सॉल्यूशन होगा e टू द पावर ऑफ x इक्वल टू sin x का। ये एक बहुत ही मींस इट्स अ ग्राफिकल वे ऑफ थिंकिंग टू गेट द सॉल्यूशंस। इनका ये आप सॉल्व करने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। कुछ कैलकुलेटर्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं जिनमें हम डालेंगे तो वो सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यू आर नॉट अलाउड टू यूज ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज करते हैं तो तब भी आप नहीं कर पाओगे। ओनली द ग्राफिक कैलकुलेटर जो है जीसीडी जिसे हम लोग बोलते हैं वो यूज करने से हो सकता है, बट वो आप लोगों के लिए अलाउड नहीं है। तो भाई यहाँ पे देखते हैं कि इनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। चलिए, सो ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, देखो आप कि पहले तो मैं e टू द पावर ऑफ x ही ग्राफ ड्रॉ करूंगा। अब e की वैल्यू जो है वो आपका 2 और 3 के बीच में होता है। e की वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में होता है। e की वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में होता है। इसे बोलते हैं हम लोग ऑलर्स कांस्टेंट। ऑलर्स कांस्टेंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। तो
तो आप लोग अगर फॉलो करते हो ये e टू द पावर ऑफ x में जो b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, बिकॉज e का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है, एंड e टू द पावर ऑफ x में जो कोफिशिएंट जो है वो प्लस है। तो ग्राफ जो बनेगा e टू द पावर ऑफ x का वो आपका अबव x एक्सिस होगा और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अगर आप लोगों को ध्यान है कि y इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर ऑफ x में a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है एंड b की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ जो होता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, राइट। तो यहाँ भी वही बात है कि आपका यहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव है, a इज +1 ओवर हियर एंड b इज e एंड e का वैल्यू जो है वो 2 एंड 3 के बीच में रहता है। तो ग्राफ जो बनेगा e टू द पावर ऑफ x का, अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसकी ग्राफ देखो कैसे बनेगा। दिस इज अ ग्राफ विल बी फॉर e टू द पावर ऑफ x, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बन गया, राइट। अब इसके बाद जो है दूसरा ग्राफ जो है वो sin x के, sin x का ग्राफ आप लोगों को मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ अलग से। सो वेल ओवर हियर माय फ्रेंड द ग्राफ ऑफ gx इक्वल टू sin x। अब sin x की ग्राफ जो है हम लोगों को पता है कि sin x की मैक्सिमम वैल्यू +1 होते हैं एंड मिनिमम वैल्यू -1 होते हैं, एंड ये एक वेवी वे में चलते रहता है। सो इट गोज ऑन लाइक दिस on both side it will go on, ये ऐसे ही चलते जाता है। तो हम लोग ट्रिक फंक्शन के ऊपर जब क्लास करेंगे तो वहाँ पे मैं आप लोगों को और भी डिस्कस करूंगा कि ये जो होते हैं ना ट्रिक फंक्शन ये पीरियोडिक होते हैं। जैसे कि sin x की जो पीरियड है 2 पाई है, तो एक फंक्शन का पीरियड कैसे ढूंढा जाता है वो भी डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों का क्या था कि इक्वेशन जो था e टू द पावर ऑफ x इक्वल टू sin x, और हम लोगों को निकालना था कि e टू द पावर ऑफ x इक्वल टू sin x इक्वेशन की कितने सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो मैंने बोला कि वो कितने सारे सॉल्यूशन को हम लोग दूसरे वे में हम लोग सोच सकते हैं कि कितने जगह पे e टू द पावर ऑफ x की कर्व एंड sin x की कर्व इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ दैट विल हेल्प्स मी टू ड्रॉ द कर्व ऑफ sin x। तो sin x की कर्व जो है ये अब इधर ऐसे जा रहा है, ऐसे चलते जाएगा, और यहाँ पे ये ऐसे दिस वे। तो अगर आप लोग फोकस करते हो तो ये देखो आप e टू द पावर ऑफ x एंड sin x जो है ना एक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस में इनफाइनाइट जगह पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे e टू द पावर ऑफ x की कर्व जो है वो x एक्सिस के नीचे आते जाएगा, इट विल कम वेरी क्लोज टू द x एक्सिस, और ये sin x ऐसे ऊपर नीच करेगा और वो उसको ऐसे काटते हुए जाएगा। तो कितनी जगह पे वो उसको काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इनफाइनाइट जगह पे करेगा, और जो भी जहां भी वो करेगा वहां पे x का वैल्यू, बिकॉज ये जो भी जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है ना e टू द पावर ऑफ x एंड sin x जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो सब पॉइंट जो है वो y एक्सिस की लेफ्ट पे है, y एक्सिस के लेफ्ट पे है। तो मतलब यहाँ पे सब जगह पे x की वैल्यू नेगेटिव होंगे। तो e टू द पावर ऑफ x इक्वल टू sin x के कितने सारे सॉल्यूशंस हैं, इट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और उनके साथ साथ जो भी सॉल्यूशन होंगे वो सब आपके नेगेटिव होगा। So this is what the thing about of e to the power of x equal to sin x। I hope आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को कुछ कमेंट करना है तो यू कैन कमेंट बिलो, अगेन द डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हम लोग के आईडीज हैं, और अगर आप लोगों को टेलीग्राम में फॉलो करना है यू कैन फॉलो अस इन द टेलीग्राम्स। सो प्लीज let us know that so whether you people are understanding or not, we will be very happy। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू।